اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ عزیزان، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ اے فرزندان آدم، آپ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہو تو مزین بن کے جائیں، زینت کر کے جائیں، آرائش کر کے جائیں، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کریں۔ خداوند متعال اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ تو عزیزان، اس آیت کے ذیل میں ہم دیکھتے ہیں تو تمام جو نمازیں ہیں ہمارے اوپر، تمام نمازوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن علماء جیسے آیت اللہ مشکنی و دیگر بعض علماء اس آیت سے جو استفادہ کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس آیت میں عیدین کا بھی تذکرہ ہے۔ جو عید الفطر ہمارے ہاں نزدیک آ رہی ہے، تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس آیت میں عیدین کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ جب آپ روز عید، صبح عید اپنے آپ کو مزین کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو اچھا سنواریں اور نماز عید کی طرف چلیں۔ تو اس آیت کے اندر دو پہلو ہی ہیں۔ ایک پہلو تو ظاہراً آرائش کا ہے، یعنی انسان کی جسمانی صورت کو سنوارنا ہے، اپنے لباس کو سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو عطر سے مزین کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا باطنی پہلو بھی ہے، وہ باطنی معنوی پہلو ہے، یعنی نہ فقط آپ اپنے آپ کو فقط ان ظاہری حلیات میں سنواریں، بلکہ اپنے آپ کو باطنی اور معنوی ترقی بھی دیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر اس کام سے جس سے ناراحت خداوندی ہو، جس کام میں اہل بیت علیہم السلام ہم سے راضی نہ ہوں، اس کام سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، وہ عید کے دن ہی ہو۔ لیکن متاسفانہ ہمارے ہاں یعنی عید کا دن ویسے یعنی فحش کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہم آوارہ گردی میں ڈالتے ہیں، لیکن عید کا دن اس کا نہیں ہے۔ عید کے دن کی معنی یہ نہیں ہے۔ حقیقت اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ روز عید جو ہے وہ لفظ عود سے لیا گیا ہے۔ عود کا معنی ہے پلٹنا، لوٹنا، یعنی اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا ہے اور خوشیوں کی طرف لوٹنا ہے۔ تو عید کی اگر ہم معنی دیکھتے ہیں لغت کے اندر تو ہمیں خوشیوں کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن خوشیاں بھی وہ خوشیاں جن خوشیوں میں اہل بیت راضی ہوں، جن خوشیوں میں خداوند متعال کی خوشنودی حاصل ہو۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے آج کل خصوصاً پاک و ہند کے اندر ایک عید کے لیے دوسرا تعصب دے رہے ہیں۔ مثلاً وہ مولا کے 10ویں کے چونکہ 21 رمضان کو مولا امیر المومنین کی شہادت ہے، تو لہٰذا یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اب عید چونکہ اہل بیت کے گھر میں قضیہ ہے، گویا اہل بیت کے گھر میں غم ہے اور اہل بیت غمگین ہیں، تو ہمیں عید نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ تصور کہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ دیکھیں، مولا امیر کی شہادت ہے، وہ اولین امام ہیں، لیکن 11 اماموں کو جب ہم دوسرے 11 اماموں کو دیکھتے ہیں، 10 اماموں کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھرپور انداز سے عید منائی ہے۔ تو ہمیں اس تعصب کو اور اس نظریے کو ختم کرنا چاہیے جو آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کے اندر اور ہمارے خصوصاً تشیع کے اندر رسوخ کر رہا ہے کہ ہمیں عید نہیں منانی چاہیے، ہمیں غم میں رہنا چاہیے، ہمیں کالا لباس پہننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس آیت جو میں نے
जिक्र की इस आयत के अंदर यानी जीनत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि आप अपने आप को जीनत दें, अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, खुशी करें। खुद लफ्ज ईद का भी यही माना है कि आप खुश रहें। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नजरिया हमारे अंदर डाला जा रहा है कि हम ईद को ईद न बल्कि एक गम का दिन और मातम करके मनाएं? ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, एक शरई मसला अलग है, जवाज और नाजवाज का, जायज और नाजायज होने का, ये अलग बहस है। लेकिन खालिसन अगर हमें ईद को देखना चाहिए तो ऐसा हरगिज नहीं। आप देखें कि करबला के वाक़े के बाद कितनी ईदें गुजरी हैं, तो अहल बैत ने ईदें मनाई हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ईद, इमाम सज्जाद के मुतालिक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि शब ईद मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पूरी रात मस्जिद में जाया करते थे, इबादत खुदा करते थे, और मौला अपने खानवादे को कहते थे कि खुसूसन इमाम बाकर को कि बेटा ये जो शब है ये खुदावंद मुताल की खुशनूदी की शब है, और ये शब जो है वो शब कादर से कम नहीं है। तो हर इमाम मासूमीन, आप देखें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब मामून ने ज़ाहिरन इमाम को ईद नमाज के लिए बुलाया है कि आप आकर ईद पढ़ाएं, तो इमाम किस अंदाज में गए, किस रोबो तअब से इमाम गए हैं कि ज़ाहिरन इस वाक़यात से हम आशना हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बेहतरीन लिबास पहनते हैं और बेहतरीन अमामा पहनते हैं और शबीह रसूल बनकर वाक़अन जैसे हुज्जत खुदा चले ऐसे चलकर इमाम उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इमाम रज़ा क्यों ना करता? अगर वाक़अन अहल बैत गम मनाते तो इमाम रज़ा से बढ़कर, हमसे बढ़कर इमाम रज़ा नहीं है। यानी कोई हमसे बढ़कर इमाम रज़ा को अमीरुल मोमिनीन की शहादत का गम नहीं है, यकीनन है। लेकिन रोज़े ईद चूंकि खुशी का दिन है तो इसको खुश होकर मनाया जाए। जैसे रसूल खुदा की से रिवायत है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल सुबह ईद, रोज़े ईद फरमाते हैं फ़इज़ा बरज़ू इला मुसल्लाहुम क़ालल्लाहु लिल मलाइकती मा जज़ाउल अजीर इज़ा अमिला अमलहू क़ाल फ़तक़ूलुल मलाइकतु इलाहना सय्यदना जज़ाउ अन तुवफ़ी अजरहू। तो खुदावंद मुतआल फरमाते हैं अपने फरिश्तेगान से कि ए फरिश्तो आप बताएं कि अगर कोई मजदूर जो है अपनी मजदूरी करके अब फारिग हो जाए तो उसे कैसा सलूक किया जाए। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल, ए हमारे महबूद, ए हमारे मौला, जब एक मजदूर अपने काम से फारिग होकर बैठ जाए तो उसे कामिलन उसकी उजरत दी जाए, उसको मजदूरी दी जाए। तो लिहाजा हम माह मुबारक रमज़ान में जो बंदगान खुदा इबादत व इताअत खुदा करते हैं उन लोगों के लिए ये दिन अजर का दिन है। ईद का दिन उनके लिए मगफिरत का दिन है। ईद का दिन उन तमाम लोगों के लिए जो बंदगान खुदा हैं, हकीकी बंदगी खुदा में रहे और अपने आप को इताअत परवरदिगार में रखा, तो उन लोगों के लिए ये अजर व सवाब का दिन है। उन लोगों के लिए ये दिन मगफिरत का दिन है। चूंकि रसूल खुदा फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल अपने फरिश्तों, जब ईद का रोज होता है, सुबह ईद होता है, तो खुदावंद मुताल अपने फरिश्तों को कहता है कि आप जाएं, हर शहर में जाएं और हर शहर के हर गली कूचे में जाएं, हर चौराहे पे जाएं और ये सिदा दें। कौन सी सिदा? ये सिदा दें कि ए खुदा के बंदे, ए इताअत गुज़ार खुदावंदी, ए खुदा के बंदे। और वाक़अन वो लोग जो लोग खुदा की इताअत में अपना पूरा महीना गुजारा है, उन लोगों को ये फरिश्ते सदा देकर कहते हैं कि अब जाओ नमाज के लिए। कौन सी नमाज? नमाज ईद की तरफ बढ़ो, आगे जाओ और जाओ खुदा से मगफिरत तलब करो और खुदावंद मुतआल आपके कबीरा गुनाह इस दिन के एवज माफ करेगा। इस दिन की बदौलत खुदावंद मुतआल आपके गुनाहों को माफ कर देगा। तो अज़ीज़ान,
हमें देखना चाहिए कि ये जो माह है वो हमारे लिए बरक़ात का महीना है, माह मुबारक रमज़ान है, रहमत का महीना है, इबादत का महीना है। इस महीने में जिन लोगों ने खुदा को राज़ी किया, जिन लोगों ने खुदा की रज़ायत हासिल की, चूँकि दूसरी रिवायत में खुद रसूल खुदा फरमाते हैं इन सरफ़ू मग़फ़ूरन लकुम क़द इरज़ैतुमू व रज़ीतु अनकुम। रसूल खुदा फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल फरमा रहा है, ए लोगों वापस चले जाओ, मुनसरिफ हो जाओ, मैंने आपको माफ़ कर दिया और आपने मेरी खुशनुदी हासिल की है, मुझे राज़ी कर दिया है। यानी इस महीने के अंदर जिन लोगों ने खुदा को राज़ी किया, खुदा को खुशनुद किया, तो उन लोगों के लिए पादाश का दिन ईद का दिन है, उन लोगों के लिए अजर का दिन है ईद। तो लिहाजा हमें ये तसव्वुर ख़त्म करना चाहिए, और ये जो लोग तसव्वुर दे रहे हैं कि हमें गम में रहना चाहिए और हमें ईद नहीं मनानी चाहिए, तो इन लोगों के लिए अर्ज़ करता हूँ कि ये गलत तसव्वुर अहले तशय्युअ के अंदर ना डाला जाए, इन सादा दिल लोगों के अंदर इन चीज़ों को ना रसूख दिया जाए। ईद का दिन खुशी का दिन है, ईद का दिन खुशनुदी खुदा का दिन, खुशनुदी अहल बैत का दिन, और बिलअख़स उन लोगों की खुशी का दिन है जिन लोगों ने खुशनुदी खुदा हासिल की, अपने आप को इताअत खुदा में, बंदगी खुदा में अपने लम्हात को सरफ किया। तो उन लोगों के लिए ये दिन पादाश का दिन है, अजर व सवाब का दिन है। तो दुआ है खुदावंद मुतआल हमें सही माना में ईद मनाने की तौफीक इनायत फरमाए, और सही माना में इताअत खुदा करने की तौफीक इनायत फरमाए, सही माना में दीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।